Hello, Namaskar. I'm Dr. H.D. Pawar. Up to the last video, we have discussed the small numerical examples based on partnership. And now, from this video, we are going to start the long examples. Actually, these examples are based on preparation of profit and loss appropriation account and capital account or current account. Depend on the types of methods of maintaining capital that we have already discussed in our previous videos. So let us start how to prepare or how to calculate the example based on profit and loss appropriation account and capital account or current account. As you know, friends, profit and loss appropriation account is a part of profit and loss account. It's a part of final account, preparation of financial statement. Without learning or without knowing about the preparation of profit and loss appropriation account and capital account or current account, you are not comfortable in preparation of final account of partnership. So it's a most important part of final account of partnership. Actually, it is not compulsory by law that you have to prepare profit and loss appropriation account and capital account or current account, but just for the convenience of accountant or convenience of students, we can say, we are preparing it. So let us see how to prepare. Let us take a simple example. Actually, it's a part of second chapter, but as the long examples are given in the first chapter, that's why I'm cover here. This kinds of long example from question, this kind of questions are not to be asked from this chapter. It's a part of second chapter. So actually, we have started the second chapter, preparation of financial statement. In financial statement, you know that we preparing trading account, profit and loss account and balance sheet. But apart from this, we are required to prepare profit and loss appropriation account and capital account or current account as far as partnership firm is concerned. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला एग्जाम्पल आपके सामने है. पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं. एग्जाम्पल आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आपके पास, और एग्जाम्पल साथ में रहेगा तो समझने में आसानी रहेगी. डिस्क्रिप्शन में भी आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा. A and B are the partners of a firm. On 1/4/2024, their capital is rupees 1,20,000 and 2 lakh respectively. During the year 1/4/2024, A has withdrawn 30,000 and B has withdrawn 40,000 on 1/1/2025. Provision for partnership deeds are as follows. Number one is provide 12% interest on capital, charge 9% per annum interest on drawing. 2,000 per month are payable to A for an active role in the firm, while 5% commission of divisible profit is payable to B. On 1/12/2024, A has given a loan of rupees 60,000 to the firm. There is no provision for the interest on loan in the partnership deed. And if such kind of provision is not there, then we will provide 6% interest, and that will shown in the debit side of profit and loss account. He claims 11% interest on his loan, but not more than 6% is given. The profit of the firm on 31st March 2025 was 1,58,800 before above mentioned provision, but after charging interest on loan of A. मतलब A की लोन का जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी चार्ज कर दिया गया है, तो हमें अब चार्ज करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी वो प्रॉफिट एंड लॉस में बताया जाता है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनता है, इसलिए इस पॉइंट को यहाँ पर हम कंसीडर नहीं करेंगे. फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से इसको बनाना है. सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2025 ये आपके सामने आ गया. इस तरीके से ब्लैंक बनाएंगे. सबसे पहले क्या रखेंगे, तो सबसे पहले हम जो नेट प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है, यू नो दैट ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट मिलता है. नेट प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया गया और वो नेट प्रॉफिट दिया गया है, नेट प्रॉफिट ऑलरेडी अवेलेबल है एग्जाम्पल के अंदर, उसको हम यहाँ पे रख देंगे. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काउंट करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,700 and 900 है,
ये कैसे काउंट करेंगे, तो आप एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हैं कि ए ने जो ड्राइंग किया है वो इन द बिगेनिंग ऑफ द ईयर है, इसलिए पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। और बी का जो विड्रॉइंग है वो एक एक से है, इसलिए 3 महीने का इंटरेस्ट इसके ऊपर लगेगा। मैं एक बार आपको फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 30,000 का ड्राइंग ए का है, जिसके ऊपर एक 4 से 9% का इंटरेस्ट लगाया है। तो 30,000 का 9% यानी 2700, और 40,000 का 9% करके उसको 3/12 में कन्वर्ट करेंगे, तो इस तरीके से उसका जो इंटरेस्ट है वो निकल के आ जाएगा। कैलकुलेटर के ऊपर आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। फिर से आ गया, और ये इसको आउटर साइड रख देंगे। पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सपेंसेस है, बट फर्म के लिए इनकम है, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर क्रेडिट है। और इसकी दूसरी एंट्री हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड बताएंगे। यहाँ सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे, क्योंकि फ्लैक्चुएट सिस्टम है, कुछ बोला नहीं गया है, इसलिए कैपिटल अकाउंट ही बनाया जाएगा, करंट अकाउंट नहीं बनेगा। फ्लैक्चुएट कैपिटल सिस्टम फॉलो करते हैं, ऐसा हम मान लेंगे। उसके बाद क्या आएगा, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, कैपिटल ऑलरेडी दे रखा था, तो 1,20,000 का कैपिटल है, उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट 14,400 पूरे साल का इंटरेस्ट। बी की कैपिटल 2 लाख है, उसका 12% यानी 24,000, और इस तरीके से 38,400 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। इसकी दूसरी एंट्री कैपिटल अकाउंट में होगी, हम बाद में कैपिटल अकाउंट भी देख रहे हैं। पार्टनर्स ए को 2,000 रुपीज पर मंथ सैलरी देना है, तो 12 मंथ का सैलरी 24,000 होगा। हम 12 मंथ के लिए एनुअल अकाउंट बनाते हैं, ये एनुअल अकाउंट का ही पार्ट है, यू नो दैट। उसके बाद बी को कमीशन देना है, और कमीशन डिविजिबल प्रॉफिट का 5% है। प्रॉफिट तो है नहीं, प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्रेडिट साइड का टोटल लगाते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल आपने देखा 1,62,400 आता है, और वही टोटल हम डेबिट साइड रख देते हैं। डेबिट साइड का डिफरेंस अगर हम ये 1,62,400 में से 38,400 और 24,000 एग्जैक्टली 62,400 होता है, वो माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने पर 1 लाख प्रॉफिट आता है, और 1 लाख का 5%, 1 लाख का 5%, दैट मीन्स 5,000 इज द कमीशन पेबल टू बी, वो भी डेबिट साइड बताएंगे। इट्स इनकम फॉर बी बट एक्सपेंसेस फॉर partnership. And now the remaining profit is 95,000. This is divided into partners. No profit sharing ratio is given. That's why according to the Partnership Act, it will equally divided between A and B. So this is 95,000 profit. So here your profit and loss appropriation account is complete. Very easily you can prepare, right? And it's a part of final account. आप final account ही आपने सीखना शुरू कर दिया है। सिर्फ 2 ही चीजें यहाँ पे बना रहे हैं, लेकिन आगे जाके जैसे जैसे एग्जाम्पल आगे बढ़ाएंगे हम पूरा फाइनल अकाउंट का एग्जाम्पल सीखेंगे। और फाइनल अकाउंट आपकी बोर्ड की एग्जाम में 12 मार्क्स का एग्जाम, सॉरी 11 मार्क्स का एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो खास ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा चैप्टर सीखने के लिए, फाइनल अकाउंट सीखने के लिए आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी जो आप 11th स्टैंडर्ड में सीखे नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में 2 पार्टनर हैं, ए और बी, तो ए और बी के दोनों साइड हमने कॉलम रख दिए हैं। सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल आ जाएगा 1,20,000 और 2 लाख, जो आपको एग्जाम्पल में दे रखा है। एग्जाम्पल अपने पास स्क्रीनशॉट लगा के रखिए या फिर लिख के रखिए, एग्जाम्पल सामने रखेंगे तो समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। उसके बाद ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स पार्टनर का दिया हुआ है 30,000 और 40,000, ड्राइंग डेबिट कर देंगे, जो पार्टनर्स की कैपिटल को कम करता है, इसलिए डेबिट लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,700 एंड 900 आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, दिस इज अनदर एंट्री। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट था, तो यहाँ क्रेडिट आ जाएगा। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट था, वही यहाँ पे क्रेडिट आ गया। ए का ही था तो ए में ही लिखेंगे, बी में कुछ नहीं आएगा। उसके बाद कमीशन की बात करते हैं, तो कमीशन सिर्फ बी को देना है, तो बी में 5,000 कमीशन ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के हम अंदर बता चुके हैं। और लास्ट में जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, सो दैट प्रॉफिट ऑल्सो शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ partners capital account, and all the entries are over now. Now you can close this account, and the same total if you put on debit side, and the difference is 1,73,000 and 2,35,600। तो इस तरीके से आपका कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। तो यहाँ पर हमने दोनों अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बना के देख लीजिए। आप सब देख लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये एग्जाम्पल आपकी नोटबुक में लिख के तैयार करें। इसी तरीके का एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में देखें, इलस्ट्रेशन देखें, और साथ में एक्सरसाइज भी देखें, सॉल्व करें और मैच करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको
ज़्यादा समझ में आएगा। बिना प्रैक्टिस के कुछ हो नहीं सकता, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो वीडियो देखते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।